اور باقی ساری امت اس نجس اور پلید کردار سے محفوظ رہ گئی، ورنہ الناس علی دین ملوکہم، انسان اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتا ہے۔ کچھ ہی عرصے 5 سے 7 سال کے اندر اسلامی دنیا کا ہر فرد جزیدی بن جاتا، ہر دوسرا فرد جزید بن جاتا، رشتوں کی حرمت ختم ہو جاتی، تمام تر قداستیں سب کے سب تمام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ یہ کام امام حسین نے۔ اب اگر ایک جملے میں کربلا کی تفسیر بیان کرنا چاہوں تو کربلا کی جنگ یہ فسق کے خلاف جنگ ہے، فجور کے خلاف جنگ ہے، اور جو وجہ بیان کی امام حسین علیہ السلام نے، یہاں پر آ کر امام حسین کا جہاد رک رہا ہے، یہاں سے علی زین العابدین کا جہاد بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری زحمت میں نے آپ کو دی اس جملے سے منسلک ہونے کے لیے، مرتبط ہونے کے لیے۔ جہاں امام حسین کا کام رکا، یہاں سے امام علی زین العابدین کا کام آگے چلتا شروع ہوتا ہے۔ اور امام سجاد نے، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے 35 سالہ عہد امامت میں 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک ان 25-35 سالوں میں ان 4 حکمرانوں کے مقابلے میں کیا کیا ہے، تو آپ نے یہ ایک کام کیا، معاشرے سے اس فسق کو جڑوں سے ختم کرنے کے لیے آپ نے جہاد کیا۔ کیا کام؟ 7 کام کیے۔ ان میں سے ایک آپ کام دیکھیے کہ آپ نے رسالت الحقوق، 51 حقوق جس میں اللہ کا حق ہے، جس میں ہمسائے کا حق ہے، جس میں اولاد کا حق ہے، جس میں والدین کا حق ہے، جس میں ہمسائے کا حق ہے، جس میں پیغمبروں کا حق ہے، جس میں ملائکہ کے حق، یہ سارے حقوق ایک ایک کر کے طول و تفصیل کے ساتھ امام نے، ایسے نہیں کہ کسی محفل میں بیان کیوں نہ، املا کروائے، خود بیٹھے اور لکھوائے۔ یہ 51 حقوق، یہ کیا ہے؟ یہ فسق اور فجور کے خلاف جنگ ہے۔ پھر 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی، یعنی خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، دوبارہ سے امام علی زین العابدین نے آ کر اس تعلق کو برقرار کر دیا۔ یہ امامت ہے، یہ مشکل ترین دور ہے آپ کا، اور ان مشکل ترین حالات میں امام نے باقی 5 کام جن کی طرف میں نے کل اشارہ کیا، ایک کام جس طرح سے آپ نے غلام خریدے اور ان غلاموں کی تربیت کی اور ان کو معرفت ان کے دروم میں منتقل کیا اور انہیں کربلا کے پیغام کا حامل بنایا اور پھر اسلامی دنیا میں پھیلایا۔ ہر سال آپ امام سجاد 1000 سے زیادہ غلام خریدتے تھے اور پھر آزاد کر دیتے تھے، یہ شاگرد تیار کر کے اسی طرح سے لوگوں کے احساسات کو ابھارتے تھے، اس طریقے سے کربلا کو عام ہو، کیسے کیسے کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ نے وہ ابن شہاب زہری کی ہدایت کی ہے، وہ جو بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا، امام کا مرید بن گیا اور پھر کیا شرط رکھ رہے ہیں، اس طرح سے کربلا کو آپ نے منتقل کیا، عاشورہ کو آگے بڑھایا۔ ایک خواہش کی کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو ایسا کرو کہ تم ایک مجلس عزا کو برپا کرو۔ یہ پچھلی گفتگوؤں کے ساتھ ربط تاکہ آگے نتیجہ بڑھ سکے، یہ انداز ہے آپ کا۔ یہ 35 سال امام سجاد نے بنو امیہ کی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، تلوار نہیں اٹھائی، اس کے باوجود بنو امیہ کی حکومت پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کیوں مجبور ہوا؟ حزب حاکم سمجھ گیا کہ ہو کیا رہا ہے، ورنہ اگر امام کا وجود بے ضرر تھا، جیسے ہمارے یہاں پاس پڑھنے والے پڑھتے ہیں، میں ڈکے کو کچھ نہ اکھڑ والا مولا، کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، نہ، یہ تصور امامت نہیں ہے۔ وہ کچھ کر رہے تھے امام علی زین العابدین کے حزب حاکم سمجھ گیا کہ اس کو اپنا وجود بھی حقیقت نظر آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 95 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کے فرزند امام محمد باقر بالکل وہیں سے اپنے کام کا، چونکہ یہ ایام میلاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور چونکہ میں نے ان سے متعلق ایک بات شروع کی تھی تو چاہتا ہوں کہ کم سے کم آج کی گفتگو میں اس سلسلے کو روک دوں، مکمل کر دوں، کسی نقطے تک پہنچا کے کل اور پرسوں کی جو آخری 2 گفتگو میں اسی آیت کی مزید وضاحت اور پھر ہم نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ 18 سال 10 مہینے 12 دن یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جو عہد امامت ہے، یہ زرین دور ہے عہد امامت کا۔ آپ نے کیا کیا؟ امام محمد باقر میں آپ کی مناظرات، آپ کی گفتگویں، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کا کچھ حصہ کل بیان کر دوں گا، یا پھر ہم آیت کے باقی مفاہیم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اسے کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ خود امام سجاد موجود ہیں اور آپ کے فرزند امام محمد باقر موجود ہیں، اور ادھر سے عبد الملک بن مروان جو 86 ہجری میں اس کی موت ہو رہی ہے، 22 سال حکومت کی ہے اور 86 ہجری میں اس کی حکومت ختم ہو رہی ہے، اس کی موت ہوئی ہے۔ تو اس نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں جب ایک دانشور آیا مناظرے کے لیے، اور تمام مسلمان آتے تھے اس کے ساتھ مناظرے کے لیے، جو دانشور آیا تھا سب کو شکست دیتا تھا۔ تفصیلات تفسیر برہان میں ہے، تفسیر عیاشی میں ہے، تفسیر قمی میں، سورہ الحمد کی تفسیر کے ذیل میں وہ مفسرین نے، علوم قرآن کے ماہرین نے اس کی تفصیلات کو بیان کیا، وقت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لاجواب ہو گیا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا عبد الملک بن مروان کے پاس، تو آپ دیکھیے کہ اس نے امام کو خط لکھا ہے،
इमाम सज्जाद को कि आए दीन खतरे में आकर दिफा करें, आप इमाम हैं, आपका फरीजा है दीन की हिफाजत करें। लेकिन इमाम सज्जाद जबकि आप दीन के तहफ्फुज के लिए कोई भी मरहला तय करते थे, इसके बावजूद जब आपको बुलाया गया आप नहीं गए। आपके जवान साल फर्जंद मोहम्मद बाकिर, उन्हें भेज दें, उन्हें भी नहीं भेजा। अब हम देखिए कि आपके पोते हजरत इमाम जाफर सादिक, आपकी विलादत 83 हिजरी में हो रही है, और अगर आप इसको 86 हिजरी के आखिर का वाकया देखें तब भी ज्यादा से ज्यादा 3 साल उम्र बन रही है इमाम जाफर सादिक की। अब समझे कि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन क्या काम कर रहे हैं, किस मुनज़्ज़म अंदाज से। इमामत एक मुसलसल तहरीक का नाम है, इमामत एक मुसलसल नेहज़त का नाम है। यूं 250 साल जुड़े हुए। अगर कोई इमामत को पढ़ना चाहता है, इनकी जिंदगियों को पढ़ना चाहता है, इसलिए मैंने जोर देकर कहा कि अगर कोई किसी एक इमाम की जिंदगी को निकाल के पढ़ेगा तो कभी नहीं समझ पाएगा। वाकयात अधूरे न उसको नजर आएंगे, बेनतीजा नजर आएंगे। ये पूरा तसलसल है, यानी पहले 30 साल 33 साल 30 साल जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का 33 साल आपने पैगंबर इस्लाम के हमरा गुजारे। इंसान सोच नहीं सकता कि वो इंसान कि जिसकी जुबान से ऐसे जुमले अदा हो के जो बशरियत जिन पर फख्र करेगी नहजुल बलागा, लेकिन पैगंबर की जिंदगी में अली ने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा। पैगंबर गिराम इस्लाम के सामने हमेशा खामोश रहा करते थे। ये कमाल अदब है। इस तरह से मुती मास के कभी आपकी जुबान हरकत में नहीं आती थी। और पैगंबर गिराम इस्लाम की रुखसत के बाद 25 साल आफ्ताब इमामत काले बादलों की ओट के पीछे मखफी और मस्तूर और पिनहान रहा, और पौने 5 साल वो जो हालत जंग में गुजर गए। और हालत जंग में इंसान की तवज्जुहात सारी की सारी दुश्मन पर होती हैं। इसके बावजूद आप देखें कि आपको 3 बड़ी जंगों में उलझाया गया पौने 5 सालों में, और इन पौने 5 सालों में जो आपकी जुबान से हिकमत के गोहर फूटते थे, आप देखें नाजुल बलागा शायद उनका सैकड़वां हिस्सा होगा, वरना खुद इमाम के जो कलिमात हैं वो 20 हाथ हैं। सैयद रजी ने उनके इक्तिबासात और टुकड़े जमा किए। लाजिम है हम पर वाक़अन, अगर हम चाहते हैं हमें अली से मोहब्बत है, अली से वाक़अन अली को इमाम मानते हैं, तो अगर हम अपनी पूरी दिन रात की मसरूफियात में 24 घंटों में से अगर सिर्फ 5 मिनट भी अली के लिए ना निकाल सके, हकीकतन अपने लिए ना निकाल सके, वाकई हमारा अली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, महज एहसासाती ताल्लुक है। लाजिम है अगर हम दिन भर के थके हुए हैं, मुसलसल मसरूफ रहे और अब हम बिस्तर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस वक्त तक ना बढ़े जब तक हम नहजुल बलागा से चंद एक जुमले ना पढ़ लें, वरना हर रोज अपने खानदान के अफराद, बच्चे, जवान, घर की खवातीन जमाओ और नहजुल बलागा कम से कम 5 मिनट पढ़ें। आप बावर कीजिए कि इंसान हैरान हो जाता है। अली इब्न अबी तालिब, फिर समझ में आता है कि इमामत क्या है। कभी किसी मौके पर मैं मुसलसल खुद नहजुल बलागा की तारुफ में गुफ्तगू करूंगा। अब ये मुसलसल सिलसिला है, और फिर मौला मुत्तकिया ने जहां पे आके सिलसिला रोका, इमाम हसन ने वहां से आगे बढ़ाया, फिर मैं पहुंचा था इमाम हुसैन, यहां से इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, ये तमाम तर ताल्लुकात को बहाल किया, और फिर इमाम मोहम्मद बाकिर। अजीब किरदार है, एक मुस्तकिल निशिस्त चाहिए कम से कम, जिसमें मैं इजमाली तौर पर इमाम मोहम्मद बाकिर के 18.5 साल या पौने 19 सालों का ये खुलासा आपके सामने बयान कर सकूं। और फिर आप देखें कि इमाम सज्जाद क्या कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिली हुई है। कैसा दकीक रब्त है कि ना खुद गए, ना बेटे को भेजा, 3 बरस के पोते को भेज रहे हैं। इमाम जाफर सादिक एक गुलाम के हमरा रवाना किया और अकेले तूलानी सफर किया है, और मदीने से शाम का सफर करके उस कदरी मुनाजिर के साथ जो आपकी गुफ्तगू हुई है उसका कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया आपके शहर में। ये यहां से फिर इमाम जाफर सादिक की इमामत का आगाज होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के जमाने में कितनी तहरीकें थी, जमात तव्वाबीन ऐनुल वर्दा के मकाम पर ये 4000 कफन पोश जिनकी क़यादत सुलेमान इब्न सुरद खुजाई कर रहे थे, इन 4000 अफराद का कोई रब्त नहीं था, कभी भी इमाम सज्जाद के साथ रब्त नहीं रहा, और इस तरह से ये नेहज़त नाकाम हो गई है। तारीख में उनका कोई शुमार नहीं आता। अगर वो जो करबला में जो 72 गए उनमें से एक शख्सियत इन सब के ऊपर, यानी कोई तकाबुर नहीं है। ये समझना है कि आइम्मा अहले बैत ने जितनी इस अरसे में तहरीकें उठी कभी किसी का साथ नहीं दिया। ये मैं हैरान होता हूं, बास खुतबा अहले मिंबर पढ़ने वाले मुख्तार के साथ इमाम सज्जाद की गुफ्तगू बयान करते हैं। जितनी मैंने तारीख आज तक मुताला की, एक मरतबा सारी जिंदगी में इमाम सज्जाद की जनाब मुख्तार सकफी के साथ कभी गुफ्तगू नहीं हुई है। खत 2 खत आए,
मुख्तार सकफी के 2 खतूत आए, एक कनीज उन्होंने तोहफे में भेजी थी इमाम सज्जाद को, इमाम ने उसको आजाद करके उसके साथ अक्द किया, जिसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खत लिखा इमाम सज्जाद को कि आप इब्नुल खैरतैन हैं, आपकी माँ शहजादी है, आपके हुसैन जैसे बाप है, तो आप एक कनीज को आजाद करके उसके साथ क्यों अक्द कर रहे हैं? आपको तो किसी नजीब खातून के साथ, किसी खानदानी खातून के साथ अक्द करना चाहिए था। ये एक मरतबा कनीज भेजी है मुख्तार सकफी ने, और 2 मरतबा हाँ इमाम सज्जाद मुख्तार सकफी के हक में दुआ खैर फरमाते थे और उसके लिए दुआ किया करते थे, लेकिन राब्ता नहीं रहा है। अगर राब्ता रहता, खुद उसका असर इमाम की इमामत और जो काम लेकर चल रहे थे, सिलसिले चल रहे थे, यहां तक कि अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका, ये सब के सब इमाम हुसैन के खून के इंतकाम में इन्होंने मदीना में जो सब कुछ किया है, हजारों सहाबा को इकट्ठा किया, 10,000 सहाबा कत्ल हो गए, लेकिन इमाम सज्जाद मदीना छोड़कर मदीने से बाहर मुंतकिल हो गए। क्यों? इसलिए कि आप जो काम करना चाहते हैं वो असासी नौइयत का काम है, वो बुनियादी नौइयत का काम है, ना वो हुकूमत का हुसूल है, ना वो वक्ती तौर पर इंतकाम लेना है, ना एक निजाम कयामत तक के लिए बशरियत को निजाम देना है। इमाम सज्जाद ने निजाम दिया है। इमाम सज्जाद के बाद फिर इमाम मोहम्मद बाकिर, फिर इमाम जाफर सादिक, यानी इमाम जाफर सादिक को क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि इमाम सज्जाद देख रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं इसके बाद अब मरहला खुद मेरे फर्जंद इमाम जाफर सादिक तक, चूंकि बनु उमैया की हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख दी। अब जब बनु उमैया की हुकूमत कमजोर हुई है तो बनु अब्बास उनके ऊपर मुसल्लत होना शुरू हुई है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं और इमाम सज्जाद देख रहे थे कि क्या होने जा रहा है। इसीलिए मुस्तकबिल की, कायनात की, तारीख इंसानी की सबसे बड़ी दानिशगाह, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की जब आपके पोते जाफर सादिक ने बुनियाद रखनी है, तो अभी से दुनिया को इमाम जाफर सादिक का तारुफ पेश करके जा रहे हैं। आप जाइए आज की मुतमद्दन, मुहज़्ज़ब, मुसक़्क़फ़ दुनिया में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और बड़ी बड़ी दुनिया की दरसगाहें हैं, उन सबको मिलाएं, दुनिया की कोई एक दरसगाह इमाम जाफर सादिक की इस अदीम नजीर यूनिवर्सिटी के सिर से कोई तकाबुल मुमकिन नहीं है। अब यूनिवर्सिटियों में जाएं, अगर 20 उलूम पढ़ाए जाते हैं, 30-40 पढ़ाए जाते हैं, 60-70 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में सारे के सारे उलूम नहीं पढ़ाए जाते। हत्ता अगर सारी यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा करें फिर भी कुछ उलूम है जो नहीं पढ़ाए जा रहे। पहली मर्तबा चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि कायनात के तमाम तर उलूम, सारे के सारे उलूम इमाम जाफर सादिक की दरसगाह में पढ़ाए जा रहे हैं। और आपने किस तरह से क्या बुलंदतरीन शख्सियतों को तैयार किया, हर इल्म में ऐसे ऐसे पहाड़ से बुलंदतर शख्सियतों को तराशा तैयार किया। अबान बिन तगलब को उलूम कुरान में तैयार किया, अदबियात में तैयार किया। जनाब हिमरान को कुरान मजीद की तफसीर में इस तरह से तैयार किया। इसी तरह से जाबिर बिन हय्यान को इल्म कीमिया में, इल्म केमिस्ट्री में तैयार किया है। हशाम बिन हकम को फलसफा और हिकमत में तैयार किया। जनाब ज़ुरारा को फिक़्ह में तैयार किया। अबू बसीर को आपने इल्म हदीस में तैयार किया। इसी तरह से मोमिन ताक को आपने इल्म कलाम, इल्म अकायद में तैयार किया। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को तैयार किया है और उसके बाद इनको दुनिया में फैलाया है। मुख्तलिफ शहरों में अपना नाइब मुअय्यन किया। और अगर कोई इमाम के पास उस शहर से उठता, अगर खुरासान से उठता, बसरा से उठता, कूफा से उठता, इमाम के पास आता कि मुझे ये मसाइल है, इन सवालों के जवाब चाहिए, फरमाया तू आया है मुझसे मिलने के लिए, तुमने मिल लिया है, लेकिन इन सवालों के जवाब तुम्हारे शहर में मेरा नुमाइंदा बैठा है, उससे पूछो और जो जवाब तुम्हें मिले उसे जाफर सादिक का जवाब समझ के कबूल करो। ये मुतवाज़ी निजाम कायम किया है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर हुकूमत हासिल कर सकते थे। हमने समझना है इमामत का दौर, इमामत क्या है, और ताकि तशय्यो का जो रिश्ता है इमाम के साथ, खुद इन सलीकों को, इन दिक्कतों को बारीकों समझें। वरना ये जो हम किस्से कहानियां सुनते हैं, ख्वाब सुनते हैं, आका इमाम ज़माना, अच्छा इतनी दफा ये पढ़े तो जियारत हो जाएगी, इतनी दफा ये अमल करेंगे तो जियारत हो जाएगी। खूब जियारत हो गई, सुम्मा मासा, फिर क्या है, हमें जियारत हो गई, हम मारिफत के किस दर्जे पे खड़े हैं? अगर इमाम हमें कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, क्या हम उस जिम्मेदारी को अदा करने की सलाहियत रखते हैं? मैं इस ख्वाब में देख लें या सामने देख लें तो क्या हो जाएगा? मकसद क्या है? क्या हम इस लायक हैं कि आका इमाम ज़माना हमें कोई ओहदा दे सकें, हमें कोई जिम्मेदारी सौंप सकें कि तुम ये करो, इस काम को अंजाम दो? समझना है, अगर हम जानना चाहते हैं इमाम ज़माना के साथी कैसे हैं, तो फिर हमें रुक कर फिर से करबला पर नजरसानी करनी पड़ेगी, फिर रुक कर करबला के इन किरदारों को समझना होगा। कैस इब्न मुसार सैदावी, आप खुद सोचें, आप जाते हैं ज़ियारत के लिए ज़ीशान भाई, बाकी आप मोमिनीन, आपको भी तौफीक हासिल हुई होगी, और अभी तक अगर कोई मोमिन करबला नहीं जा सका,
परवरदिगार इमाम मूसा कासिम के इन मीलाद के अय्याम के तसद्दुक में उसे करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब आप करबला जाए तो तमाम शुहदाए करबला के बीच में आपको हैरत होगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर जनाब कैस इब्न मुसाहर सैदावी का नाम लिखा हुआ है। दरअसल कि ये तो करबला में शहीद नहीं हुए, ये तो जिलहज में शहीद हुए, ये तो इमाम हुसैन के कासिद हैं। फिर इन 72 में आपका नाम क्यों लिखा गया है? शुहदाए करबला में आपका नाम क्यों लिखा गया? इसलिए कि इनकी वजह से 9 से 10 अफराद 72 में शामिल हुए, वरना वो तादाद 62 रह जाती। ये कैसे इब्न मुसाहर, आज अगर हम समझते हैं कि हम अपने जमाने के इमाम की किस तरह से नुसरत करें, इन 14 से मदद मांगना और है, लेकिन इन 14 की मदद करना दीन के रास्ते में ये अलग है। तशय्यो क्या है? वो तो कोई काफिर भी इनसे नुसरत मांगेगा, कोई ईसाई भी इनसे औलाद मांगेगा, कोई अहले किताब इनसे मदद मांगेगा। ये सबकी मुश्किल कुशा है, सबके मददगार हैं। तशय्यो अलग है। तशय्यो हुसैन के नाम पर हुसैन से कुछ मांगने का नाम तशय्यो नहीं है। तशय्यो खुद को, अपनी औलाद को, अपने असबाब को, अपने वसाइल को, अपने माल को, अपनी दौलत को, अपनी जिंदगी को तबक इखलास में रख कर हुसैन के कदमों में पेश कर देना, यह हुसैनियत है। आज के जमाने के हुसैन आका इमाम जमाना हमसे इस चीज का मुतालबा करते हैं। हम कहां खड़े हैं? हमने देखना है, तज्जिया करना है। हमने खुद को सईद बिन अब्दुल्ला हनफी की जगह रोक के रखना है। देखना है कि अगर हम करबला में इमाम हुसैन के सामने होते, एक मर्तबा एक फकीह वो परेशान हो गए, एक मुज्तहिद थे, आलिम थे, फकीह थे, परेशान हो गए कि इतना रुतबा कि इमाम हुसैन ये फरमा दे कि अंत अमामी फिल जन्नह, कि तू जन्नत में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगा। ये छोटी बात नहीं है। यानी वो जन्नत जिसमें अंबिया ना जा सके, वो जन्नत जिसमें मलाइका ना जा सके, ये कौन सी जन्नत है? जो जन्नत हमारे लिए है, मलाइका के लिए, जो जन्नत अंबिया के लिए है, जो जन्नत कायनात के तमाम इंसानों के लिए है, ये बैतुल मामूर आसमान चाहरों, चौथे आसमान पे अल्लाह ने ये जन्नत रखी है। सुने कौन है ये करबला वाले? इन 72 का मकाम कौन है? मैं ये शेर कहां करता था, जो जोश मली आबादी का शेर है, पढ़ा करता था, लेकिन अब छोड़ दिया ये शेर पढ़ना। जोश मली आबादी कहते हैं कि इन 72 से मुतल्लिक के सर फरिश्तों के यहां आज भी कम होते हैं। ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं, लेकिन ना बात इससे बहुत आगे, इसलिए कि अंबिया की जन्नत बैतुल मामूर तक है। लेकिन इन 72 का मकाम क्या है? ये जो 98 नंबर जिल्द बिहरुल अनवार की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो छठे इमाम ने बयान फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की जियारत का शरफ अहले जन्नत को 70,000 नूरी साल के दरमियान सिर्फ एक मर्तबा अहले जन्नत को हुसैन के चेहरे की जियारत का शरफ अता किया जाएगा। और अब समझे, ये जुमले में अदा कर चुका हूं, लेकिन अहमियत के मद्देनजर अर्ज कर रहा हूं ताकि अपनी जिम्मेदारी का तयन कर सकें, एहतसाब नफ्स की खुदा लेकर अपना मुहासबा कर सके कि हम कहां खड़े हैं। विर्द वजीफे के साथ दुआ मांग लेना, जियारत की ख्वाहिश कर लेना, ये और है, ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। तशय्यो अलग है। तशय्यो एक मयार का नाम है। तशय्यो इमाम वक्त की नुसरत का नाम है। इमाम जमाना की नुसरत कैसे की जाती है, ये देखा खुद करबला में इंसान जब देखता है। सईद बिन अब्दुल्ला हनफी जैसे ही जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मतलब जो इमाम सादिक ने फरमाया कि 70,000 नूरी साल में इंसान एक मर्तबा हुसैन के चेहरे की जियारत का शरफ हासिल करेगा। यानी क्या मतलब? यानी हुसैन की जन्नत आलम लाहूत में, आलम अस्मा व सिफात में, कुर्ब परवरदिगार में, वो बाला तरीन जन्नत जिसके लिए सूरह फज्र की 30वीं आयत में खुदा फरमा रहे फदखुली फी जन्नती, हुसैन आप मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यानी वो जन्नत अलग है। वो जन्नत ज़हन इंसान से, फिक्र इंसान से माबरा बालतर, उसका कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। ये जन्नत की सारी नेमतें उसके आगे हीच हैं। वो खुदा जानता है और ये 14 जानते हैं वो कैसी जन्नत है। लेकिन खुदा कुरान में ऐलान फरमा रहा है, सूरह फज्र, सूरह इमाम हुसैन, इसकी 30वीं आयत में खुदा हुसैन की शहादत के वक्त कह रहे कि आ मेरी तरफ मेरे बंदे लौटा और आकर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और जो हमारी जन्नत होगी, खुदा हम सबको तौफीक दे, इस जन्नत में तो अल्लाह हुसैन इब्न अली को 70,000 नूरी सालों में एक मर्तबा भेजा करेगा अहले जन्नत की जियारत के लिए कि वो हुसैन की जियारत का शरफ हासिल करें। तो फिर ये सईद बिन अब्दुल्ला हनफी कौन है कि जब रोज़े आशूर 114 तीर खाने के बाद जब पूछा अवफ़ैतु या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन इब्न अली क्या मैंने आपके साथ वफा की? ये सुने तमाम मक्तल निगारों ने ये जुमले लिखे। इमाम हुसैन के लबों से ये जुमला अदा हुआ, या सईदो अंत अमामी फिल जन्नह, ए सईद तू जन्नत में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा करेगा।
یعنی جو جنت حسین کی ہے وہ ان 72 کی ہے. اب سمجھنا ہے قیس ابن مسار سیداوی کون ہے. یہ تو ان 72 میں شامل نہیں ہے، روز عاشور شہید نہیں ہوئے، لیکن ان 72 میں سے 10 شہدائے کربلا کی، کربلا پہنچنے کی سبب اور وجہ بنے قیس ابن مسار سیداوی. وہ سعید بن عبداللہ حنفی وہ فقیہ کہتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ اتنے بڑے درجے تک کیسے پہنچ گئے، شاید یہ روایت غیر معتبر ہو. یہاں تک کہا میں نے آقا امام زمانہ سے توسل کیا، میں جاننا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسی طرح سے امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ فقیہ کہتے ہیں کہ مجھے سامنے کھڑا کیا گیا، اور جیسے ہی پہلا تیر آیا تو میں نے اپنے اوپر اس کو روکنے کی کوشش کی، اور پھر محسوس کیا کہ نہ یہ تو مجھے لگے گا، تکلیف ہوگی، درد ہوگا، میری موت ہو سکتی ہے. میں سامنے سے ہٹا اور میں نے دیکھا کہ وہ تیر جا کر امام حسین کو لگ رہا ہے. دوسری مرتبہ جب تیر آ رہا تھا تو اب میں نے چاہا کہ نہ اب تو ہر حال میں دفاع کروں گا، لیکن جیسی تیر قریب آیا میں پھر ہٹ گیا. یہاں تک اسی اسنا میں میری آنکھ کھل گئی کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کیوں امام حسین نے جناب سعید کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا. آج اگر یہاں پر بیٹھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس زمانے کے حسین یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ، اگر ان کے دفاع کے لیے کوئی تیر مجھے اپنی جان پر کھانا پڑ جائے، مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑ جائے، مجھے اپنے مال کو قربان کرنا پڑ جائے، میں کہاں پر کھڑا ہوں. اس لیے ایسا کہ اگر کوئی رک کر امام زمانہ کی زندگی کو پڑھنا چاہتے نہیں سمجھ پائے گا. پہلے 11 ائمہ کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. قیس ابن مسار سیداوی کی شخصیت کو پھر میں کسی اور مرحلے پر عرض کر دوں گا کہ آپ نے کیا کیا جس کی وجہ سے 10 افراد شامل ہوئے، اور میں شرمندہ ہوں. جہاں امام صادق نے بام عروج تک پہنچایا اس سلسلہ امامت کو، یہاں تک کہ آپ کو ابو شاکر دیسانی یا باقی افراد نے جو آپ کو ایران سے دعوت دی گئی ہے، آپ کو عراق سے دعوت دی گئی ہے حکومت کی، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، سب کو رد کیا ہے امام نے. ورنہ اہل عراق سے جب ابو سلمہ خلال نے بنو امیہ کو باہر نکالا اور خط لکھا کہ آئے فرزند رسول، عراق کی حکومت آپ کے انتظار میں، حکومت سنبھال لیں. ایران سے ابو مسلم خراسانی نے ایسا خط لکھا کہ آئے اور ایران کی حکومت سنبھالیں، لیکن مسئلہ حکومت کرنا نہیں ہے، حکومت برائے حکومت کی اسلامی اہمیت نہیں ہے. ان کی حاکمیت کا جو غدیر میں اعلان کیا گیا اس لیے کہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک لے کر جائیں. لیکن اب جب کہ اسلامی معاشرہ اس انحطاط کا شکار ہو چکا ہے، اب حکومت اس کا حل نہیں ہے. اب انہیں شعور دینا ہے، اب انہیں قدریں تعلیم دینی ہے، اب انہیں معارف سکھانے ہیں، اب اس فسق کو ختم کرنا ہے. یہ ائمہ نے کام کیا. ایک سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ. میں نے آپ کو تھکا دیا اور مشکل باتیں شروع کر دی، شرمندہ ہوں، لیکن ارادہ نہیں ہوتا، باتیں چل پڑتی ہیں تو آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. بس مختصر 2 سے 3 جملے، اور پھر دیکھیے کیا فکری تسلسل. لگتا نہیں ہے کہ 11 افراد ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان ہے اور اس کی زندگی میں پھر مسلسل ادوار آ رہے ہیں، حکمران بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، تقاضے بدل رہے ہیں، صورتحال بدل رہی ہے، لیکن سیرت میں اور کردار میں کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیچیدہ ترین دور ہے، مشکل ترین دور ہے. یہ امام موسیٰ کاظم سے متعلق 2 سے 3 جملے عرض کرنے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تاکہ اس فکری تسلسل کو سمجھا جا سکے. اور ظاہر ہے کہ ساری چیزیں مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ وہ ائمہ کی سیرت کو پڑھے، کم سے کم وہ بنیادی چیزیں، بنیادی اصول، وہ دید اور وہ اینک ان کے ہاتھ میں دی جائے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا انداز اختیار کریں. تب آپ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، تب آپ امامت کو سمجھ سکتے ہیں، امامت کے الف با کو سمجھ سکتے ہیں، ائمہ کی زندگی کو، وہ بنیادی سرا کیا ہے، وہ ڈور کیا ہے، کیوں اللہ نے ان 14 کو عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں کیوں منتقل کیا. اس لیے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں. نہ، یہ تعریف سے بے نیاز ہے. جیسے شیخ الرئیس بو علی سینا نے جب ان سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد شہریار نے پوچھا کہ اے بو علی سینا، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں. تو شیخ الرئیس بو علی سینا، کائنات کے عظیم ترین فلسفی، استاد نا شناس معلم، یہ بو علی سینا، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، شہریار، وہ شہریار جو کہتا تھا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں میں سب سے پہلے آپ کے نبی ہونے پر میں ایمان لے کر آؤں گا. تو جب شہریار نے کہا تو اس کے جواب میں بو علی سینا نے جو جملہ کہا ہے، کہا جب شہریار نے کہا کہ آپ نے کبھی علی سے متعلق کوئی بات نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ سنوں. تو کیا خوبصورت جواب دیا، سمندر کو کوزے میں سمویا، کہ علی کی حیثیت اس کائنات میں تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا جملہ کہا ابو علی سینا نے. علی کی مثال لیلۃ القدر کی ہے. لیلۃ القدر میں اگر کوئی
जागे फिर भी लैलतुल कद्र है, सोता रहे फिर भी लैलतुल कद्र है, इबादत करे फिर भी लैलतुल कद्र है, गफलत में गुजार दे फिर भी लैलतुल कद्र है, कुरान सर पर रखे फिर भी लैलतुल कद्र है, कुरान सर पर न रखे फिर भी लैलतुल कद्र है। किसी के जागने से, कुरान सर पर रखने से, सारी रात दुआ मुनाजात करने से लैलतुल कद्र की इज्जत में इजाफा नहीं होगा, और सारी रात सोए रहने से और गफलत में पड़े रहने से लैलतुल कद्र की इज्जत में कुछ कमी नहीं आएगी। इसी तरह से अली है, अगर सारी कायनात मिलकर अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर सजदरेज हो जाए, अली की इज्जत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और अगर सारी कायनात अली से अपना मुंह मोड़ ले तो अली की इज्जत में कुछ कमी नहीं आएगी। अली खुदाए बेनियाज का अब्द बेनियाज है। अली को किसी की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। कोई तारीफ करे फिर भी अली है, कोई तारीफ न करे फिर भी अली है। वरना मुसलसल 100 साल तक बनो उमैया मिंबरों से लान तान करते रहे तो क्या हुआ है? अली कल भी अली थे, अली आज भी अली है। अली कल भी बाज़मीर लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे थे, अली आज भी बाशऊर बाज़मीर लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। राज क्या है? ये समझना है कि अल्लाह ने इन 14 को हमारे दरमियान क्यों भेजा, ताकि हम पस्तियों से उठें और फिर औज उरूज मेराज रिफत और बुलंदी की ये दर्जात तय करें, कमाल तक पहुंचे, उस दर्जे उरूज तक पहुंचे। और इज्तिमाई तौर पर ये तशय्यो की जिम्मेदारी है। ये मैंने कल अर्ज किया, तशय्यो फिरका नहीं है, तशय्यो गिरोह नहीं है, तशय्यो इस्लाम की नौइयत का नाम है, तशय्यो इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, तशय्यो इस्लाम का हरावल दस्ता है। हमने बाकी मुसलमानों का भी दिफा करना है, इस्लामी कदरों का भी दिफा करना है, बाकी मुसलमानों की उंगली पकड़ के उन्हें हकीकत तक लेके जाना है। वरना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को क्या गरज है कि बनु उमैया का चीफ जस्टिस है, अगर जंगल में बैठा हुआ कुछ दिनों में मर जाएगा 2 से 3 दिन में, लेकिन ना, ये सबके इमाम है, सबके राहबर हैं, सबके हादी हैं। इसी तरह से हमारी जिम्मेदारी भी सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर को ठीक कर लें तो बहुत नाम बहुत काफी हो गया, ना, हर एक तक। और ये हमारी मिसाल उस कुएं की मिसाल नहीं है जैसे कि कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता है, ना, कुएं के साथ तशबीह देना ये खुद तौहीन है मोमिन की, ना, खुद हमारे चश्मे की मानद होना चाहिए कि सबके साथ हर एक को सैराब करें, हर एक को जिंदगी दें। ये हमारे आइम्मा की सीरत है, हमने इसे मुंतकिल करना है और इसी तरह से इस सिलसिले को लेकर बढ़ना है। मैं शर्मिंदा हूं, वक्त तमाम हो रहा है। इमाम मूसा कासिम की जिंदगी जहां तक मैं पहुंचना चाहता था और सारी बात को तमहीद करा दिया, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वक्त नहीं बचा कि मैं मजीद कुछ अर्ज करूं। सोचें कि आखिर क्या वजह है कि इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम एक तरफ या इसको सफ़वान बिन याहिया जम्माल को जब ये अपने ऊंट इन्होंने हारून को किराए पर दिए तो उसे इमाम ने कहा कि आप हमें बहुत अजीज हैं और आपकी बहुत कदर है हमारी निगाह में, लेकिन आपने एक काम ऐसा किया कि मुमकिन है कि हमारा आपके साथ ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो जब सफ़वान बिन जम्माल को सिर्फ इसलिए इमाम नाराज हो रहे हैं कि वो हारून रशीद को ऊंट किराए पर दिए, जरहाली कि वो हज पे लेके गया है, किसी शिकार के लिए, अय्याशी के लिए नहीं लेके गया, तो यही इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम जनाब अली बिन जक्तीन जब इजाजत लेते हैं, कहते हैं कि मैं इस जालिम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। फरमाया मेरा हुक्म है कि तुम इस हुकूमत में रहो, वजारत उज़्मा के ओहदे पर रहो। और यहां तक इमाम ने यह जुमला इरशाद फरमाया, अली बिन जक्तीन तुम मुझे एक बात की जमानत दो, मैं तुझे 3 बातों की जमानत देता हूं। पूछा कौन सी एक बात? का तुम मुझे मेरी जमानत दो कि अगर कभी मेरा कोई शिया, मेरा मुहिब, मेरा मोमिन कोई काम लेके तुम्हारे पास आया, उसकी इज्जत और तकरीम में कमी नहीं करोगे और उसका काम और उसकी मुश्किल तुम आसान करोगे। मैं मूसा काज़िम तुमसे वादा करता हूं कि कभी न तुम तलवार से कत्ल किए जाओगे, न तुम्हें जिंदान में डाला जाएगा, न तुम तभी मौत से दुनिया से जाओगे और तवील उम्र लेके दुनिया से जाओगे, और न कभी तुम्हारे रिस्क में कमी आएगी। मैं जमानत देता हूं। और कब कब किन मुश्किल तरीन मौके पर, एक मरतबा जब हारून के जासूस आए और ये वुजू कर रहे थे, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, वो खलअत के वाकयात, जाहिर है कि मैं जुजियात में आपको नहीं लेके जाना चाहता। ये इमाम मूसा काज़िम यहां तक कि मुसलसल कैद में रखा है। क्यों कैद में रखा है? और कैद के अंदर रहते हुए, बस ये आखिरी जुमला के अब ताब नहीं और वक्त भी तमाम हो रहा होगा, मैंने घड़ी नहीं देखी लेकिन अंदाजा है कि वक्त खत्म हो चुका होगा। अब देखिए मुश्किल तरीन दौर है। जिस तरह से इमाम हसन अस्करी, ये जो 6 किताबें लिखी गई हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, अबू दाऊद, सुनन निसाई, ये 6 की 6 किताबें इमाम हसन अस्करी के जमाने में लिखी गई। इल्मी अपोजिशन के अतबार से इमाम अस्करी का दौर मुश्किल है। अब आइए इमाम मूसा काज़िम के जमाने में 5 तबकात हैं, 5 तबकात, कम से कम 5 तबकात हैं। इनका मुकाबला करना है। 4 अरकान तसव्वुफ। ये जो तसव्वुफ की आप बात की जाती है, सूफीइज्म, ये जहां से चला है, 4 रुकन है। सुफियान सूरी है, अब्दुल्ला मुबारक है, हसन बसरी है, मारूफ करखी है, इसी तरह से शकीक बिन इब्राहिम बल्खी। 4 अरकान तसव्वुफ किसके जमाने में? चारों के चारों इमाम मूसा काज़िम के जमाने में इकट्ठे हैं। फलसफा यूनान का
पहली मर्तबा अरबी जुबान में तर्जमा किस इमाम के जमाने में हुआ? इमाम मूसा काजिम के जमाने में हुआ है। यहां तक कि तीसरी जानिब एक बनु अब्बास के जालिम तरीन हुक्मरान है, और चौथी जानिब अगर फिक में चले जाएं, अहकाम में चले जाएं, 4 के 4 आइमे फिक आपके जमाने में इकट्ठे हैं। इमाम अबू हनीफा आपके जमाने में, इमाम शाफी आपके जमाने में, मालिक इब्ने अनस आपके जमाने में, इमाम अहमद इब्ने हंबल ये भी आपके जमाने में, चारों आइमे फिक आपके जमानों में, चारों अरकान तसव्वुफ आपके जमाने में, फलसफा यूनान का अरबी जुबान में तर्जमा आपके जमाने में हुआ। चौथी तरफ आपके अपने करीबी रिश्तेदार आपके मुखालिफ हो गए। मुहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन, ये आपका भतीजा है, लेकिन जाके कह रहा है हारून से कि हारून ये क्या हो रहा है कि मैंने पहली मर्तबा देखा कि एक मुमलिकत में 2 हुकूमतें चल रही हैं, 2 निजाम चल रहे हैं। का कैसे? का इधर तुम बगदाद में तुम्हारी हुकूमत चल रही है, मदीने में मूसा काजिम ने अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। इस तरह से घर का फर्द है, इमाम जाफर सादिक का पोता है, जनाब इस्माइल का बेटा है, ये इस तरह से इमाम के खिलाफ। यहां तक कि जब ये चल रहा था, इमाम ने इसको 1 लाख दिरहम दिया इमाम मूसा काजिम ने। तो पूछा कि क्यों जा रहे हो? का ऐसी बस मैं गर्दिश के लिए जा रहा हूं। फरमाया कि कम से कम तू मेरा अजीज है, मेरा भतीजा है, मेरे बच्चों की यतीमी का सबब न बनना और मेरे कत्ल में दुश्मन के साथ शरीक ना होना। लेकिन देखिए कि खुद अपने अफराद और 5वीं तरफ बनु अब्बास के जालिम तरीन सफाक और दरिंदे हुक्मरान, और इन 5 का मुकाबला करना है अकेले मूसा काजिम ने, और वो भी जिंदान में होते हुए मुकाबला करना है। और इतना बुलंद किरदार पेश किया, इसकी झलक और नतीजा और असर व खत्म मैं कल आपके सामने पेश कर दूंगा कि इसका नतीजा क्या जाहिर हुआ जो इमाम मूसा काजिम ने अंजाम दिया कि 16 साल मुश्किल तरीन कैद गुजारी है। इतनी तमाम तबकात आपके खिलाफ हैं इल्मी ओपोजिशन के एतबार से, इसके बावजूद हर रोज आपके अमल और किरदार और सीरत के बुलंद तरीन गोशे जिंदान की तंग तारीख दीवारों से छिन छिन कर पूरे इस्लामी मुआशरे में इस तरह से फैल रहे थे कि दिलों में इमाम मूसा काजिम की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। यहां तक कि हारून मजबूर हुआ कि आपको कैसे रास्ते से हटाए, क्या करे। फिर उसने क्या इकदाम किए। शर्मिंदा हूं, ये पिछली गुफ्तगू को ज़हन में महफूज रख लीजिएगा, तमहीद है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आज की गुफ्तगू खुश्क थी और मुश्किल मरहला था, लेकिन ज़हन ऐसी तरफ चल पड़ा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और फिर कल इंशाअल्लाह गुफ्तगू आसान होगी और हम कम से कम ये नताइज आपकी खिदमत में अर्ज करने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर इमाम मूसा काजिम तक इन पिछले 7 आइम्मा की मेहनत का असर और नतीजा मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। लेकिन बस चूंकि गुफ्तगू खत्म हुई, वक्त तमाम हुआ, तो यही जुमला अर्ज कर रहा हूं कि 16 साल ऐसी मुश्किल तरीन कैद जो मैं कल अर्ज कर रहा था, और फिर मैंने मरहला वहीं पर रुक गया था। सबसे मुश्किल जो दर्द है जिस पर 16 साल इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया जिंदान में, एक मर्तबा भी, हत्ता जब कीलें आपके सरे मुकद्दस में गाड़ी जा रही थी, नहीं कहा संदी बिन शाइक मुझ पर जुल्म न करो, मैं खुदा के सामने तुम्हारी शिकायत करूंगा। न कभी आपको कई दिन तक खाना नहीं दिया जाता था। 3 दिन मुसलसल 22 को आपको जहर दिया गया। 25 रजब आपकी शहादत हुई। 3 दिन तड़पते रहे, जिगर के टुकड़े कट कट के गिरते रहे जमीन पर, लेकिन पानी नहीं मांगा। 3 दिन मुसलसल प्यासे रहे। इसके बावजूद इन 3 दिनों में बार बार एक ही जुमला जुबान से अदा होता था, हाय दादी ज़ैनब। अब समझना है वो चीज जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया। ये अय्याम कौन से अय्याम है? ये कयामत के अय्याम है। एक एक दिन आशूरा पर भारी है मेरे अजीजों। आशूरा हुसैनी ये मसाइब का कुरान है, लेकिन जो फिर सफर का महीना है और जो शाम में अहले बैत के ऊपर गुजर रही है इन दिनों में, वो कैसा जिंदान है मैं कल अर्ज करूंगा। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कुछ मसाइब और बीबी की शहादत के चंद जुमले में कल अर्ज कर दूंगा। इरादा था आज बयान करूं, लेकिन ना खुद सानी ज़हरा ने इन मुश्किल तरीन हालात में क्या किया मैंने कल बयान किया था। यहां तक कि बीबी जब शाम में पहुंची है, 3 दिन मुसलसल शाम शहर के दरवाजे पर अजनबियों के सामने बिठाया गया। 3 दिन शाम शहर के दरवाजे पर बैठी है, और फिर आपको कहां कहां से गुजारा गया है। अगर समझ सके, मुसीबत का ताल्लुक एहसास से होता है। जितना जिसका एहसास बुलंद होता है उतनी उसकी मुसीबत बुलंद होती है। मैंने पढ़ा है इमाम मूसा काजिम से मुतालिक आपने 16 साल जिंदान में गुजारे, 1 साल बसरा में, बाकी 15 साल सनदी बिन शाइक की कैद में गुजारे। लेकिन जब आपसे पूछा गया ज्यादा मुश्किल कैद कौन सी थी, तो आपने जवाब दिया वो बसरा की कैद। दरहाली कि मैंने बताया कि बसरा में आपसे कोई ज्यादा सख्ती नहीं की जाती थी। फिर क्यों? तो पूछा गया क्या वजह है फरजंद रसूल? फरमाया इसलिए कि इस कैद खाने के करीब किसी के घर से गाने की आवाजें आती थी और वो मुझे अजियत करती थी। अब समझे कि मुसीबत कैसी होती है। ज़ाहिरी
जितने कोड़े मारे जाते थे, जितनी अजियत की जाती थी, कभी किसी का गिला नहीं किया। लेकिन वहां रहना, उस फिजा में, ये कितना तकलीफ देता। अगर ये बात किसी हद तक पहुंची है तो अब मैं हाथ जोड़ के कहने लगा हूं कि इन बीबियों को जब शाम में लाया गया और जिन गलियों से गुजारा गया, ओबाश तरीन अफराद को सामने नाच रहे थे, तवाइफें नाच रही थी, ढोल पीटे जा रहे थे, गाने गाए जा रहे थे, और तवाइफों के मोहल्लों से गुजारा गया है, जहां बुर्दा फरोशी की जाती थी, जहां कनीजों की खरीदो फरोख्त की जाती थी। अहले दिल समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत है। क्यों इमाम सज्जाद से जब पूछा गया, करबला का नाम नहीं लिया है, कूफा का नाम नहीं लिया है, जब मिनहाल ने पूछा, आका बताएं सबसे ज्यादा मसाइब कहां गुजरे? फरमाया अश्शाम, अशाम, अशाम। क्या देखा शाम में जब गलियों से गुजर रहे थे? एक जुमला मैंने कल कहा और जिंदगी में पहली मर्तबा आपके सामने कहा है, यहां तक कि मैंने पढ़ा है कि औरतें घरों से गर्म पानी लेके गई छतों पर, और बीबियां बच्चे जहां से गुजर रहे थे, ये खोलता हुआ पानी सरों पर गिराया जा रहा था। फिर इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए, बीबियां लहूलुहान हो गई हैं। 11 सहाबा में से एक सहाबी जिनका ताल्लुक शाम से है, साल इब्ने साद अस्साइदी, कुछ दिन गुजरने के बाद जैसे ही शाम शहर में दाखिल हुए, देखा दीवारें रंगीन हैं, सुर्ख हैं। पूछा, अहले शाम, क्या तुम जानवरों को गलियों में ज़िबा करते हो? जवाब दिया, ना साहबी रसूल, हमने जानवरों को ज़िबा नहीं किया है, बल्कि इन गलियों से मोहम्मद और अली की बेटियों को गुजारा। मोहम्मद और अली की बेटियों को इन गलियों से गुजारा गया। इतना मुश्किल मरहला, इतने पत्थर मारे गए, इन बीबियों बच्चों के लिए चलना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद मैंने पढ़ा, बीबी कोहनियों के बल चलती रही। ये छोटी बात है, सानिए ज़हरा कोहनियों के बल चल रही है, लेकिन रुकी नहीं है, आगे बढ़ती चली गई है। कहां रुकी? यहां पर मैं कल पहुंचकर रुक गया था। वो कौन सा मरहला है? बीबी की जिंदगी का सबसे बड़ा मरहला, सानिए ज़हरा की जिंदगी में कयामत का मरहला। चूंकि इससे एक कदम उठाएं तो यजीद का दरबार शुरू होता है। यजीद के दरबार पर मुमकिन था कि बीबी पहुंचकर बीबी का जिगर फट जाए। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही जमीन पर बैठी है, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, आगे बढ़ के पूछते, फूफी अम्मा घबरा गई है, फूफी अम्मा थक गई है, फूफी अम्मा परेशान है। फरमाया, नहीं सज्जाद, मैं घबराई नहीं। कहा, फिर क्यों बैठी हैं? फरमाया, सुनो सैयद सज्जाद, आज से 20 साल पहले जब मेरे बाबा अली के सर पर ज़र्ब लगी थी, वक्त आखिर मेरे बाबा ने मुझे करीब बुलाया था, मेरे कान में वसीयत की थी, फिर बाबा की शहादत हो गई, फिर 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में बनु हाशिम की खवातीन मुझसे पूछा करती थी, ऐ बीवी बताएं, वक्त आखिर आपके बाबा अली ने आपसे क्या कहा था? मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। सज्जाद, आज पहली मर्तबा आपको बताने लगी हूं। मेरे बाबा अली ने मुझसे कहा था, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, तुझे अपनी जिंदगी में एक दिन नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में, यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। और बेटी ज़ैनब, जब ऐसा वक्त आ जाए, घबराना नहीं, परेशान ना होना। मैं अली वादा करता हूं, मैं आऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। सज्जाद, मैं घबराई नहीं, रुक कर बाबा का इंतजार कर रही हूं। जब कुछ लम्हे गुजरे और सानिए ज़हरा ये कहती उठी, अस्सलामु अलैका या अबता, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अब सानिए ज़हरा उठी हैं, यजीद के दरबार में दाखिल हुई हैं। क्या कयामत का मरहला है। मैं तफसीली मसाइल फिर अर्ज करूंगा, वक्त खत्म हो रहा है तो 2 जुमले सुने। क्या क्या देखा है सानिए ज़हरा ने, क्या कयामत के मरहले थे। वो मरहला जहां सैयद सज्जाद की चीख निकल गई, वो मरहला जब जनाब सकीना आगे बढ़कर अपनी फूफी से लिपट गई। अगर सुन सके, मैंने मक्तल की तारीखों में ये जुमला पढ़ा है। एक मर्तबा जब बीबियां पहुंची हैं, सारी बीबियां खड़ी हुई हैं, कैदी देख रहे हैं, अफराद कैदियों को देखा जा रहा है, मुशीर देख रहे हैं, सफीर देख रहे हैं, तमाशाई देख रहे हैं, ये सब बीबियां खड़ी हैं, बेमकनाओ चादर खड़ी है। अब सुनिएगा, ये कयामत का जुमला है। एक मर्तबा यजीद का एक करीरी मुशीर कहता है, ए यजीद, जब किसी को फतह हासिल होती है, गलबा हासिल होता है, तो मर्दों को मार दिया जाता है, फिर जो औरतें लाई जाती हैं, इनके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। एक मर्तबा यजीद ने कहा, उन्हें कनीजी में ले लिया जाता है। कहा, ए यजीद, मैं चाहता हूं वो जो छोटी सी बच्ची खड़ी है, वो जो छोटी सी बच्ची खड़ी है, इस कैदी के साथ मैं इसे अपनी कनीजी में लेना चाहता हूं। एक मर्तबा हुसैन की बेटी सकीना तड़प गई है। तमाम तमाचों से ज्यादा मुश्किल मरहला था जनाब सकीना, जो दूर छिने, दामन को आग लगी है, ऊंट की बुलंदी से गिरी, सारे मसाइब एक तरफ, ये कयामत की मुसीबत है। जनाब सकीना एक मर्तबा फूफी से लिपट गई, फूफी अम्मा, क्या अब मैं लोगों की कनीजी में जाऊंगी? क्या
क्या क्या नहीं देखा। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, यहां तक कि यजीद के दरबार में बीबी ने क्या देखा है। आयतुल्लाह सब्जवारी ने अपने मक्तल में ये जुमले लिखे, एक मर्तबा यजीद तख्त की बालाई सीढ़ी पर बैठा है, तख्त की निचली सीढ़ी पर इमाम हुसैन का सर है और सोने के तख्त में रखा हुआ है, ऊपर रेशमी रुमाल है, और यजीद कह रहा है, ए हुसैन, तुम्हारे नाना मोहम्मद ने सोने को मर्द पर हराम किया था, मैंने सोने के तख्त में तुम्हारा सर रखा है, और रेशम को मर्द पे हराम करार दिया था, मैंने तुम्हारे सर के ऊपर रेशम का रुमाल रखा है। फिर रेशम का रुमाल हटाया। अब सुनिएगा, एक मर्तबा इसके हाथ में खीजरान की छड़ी है, बांस की छड़ी है, इसने इमाम हुसैन के चेहरे पर मारना शुरू किया। ज़ैनब देख रही है, सकीना देख रही है, उम्मे कुलसूम देख रही है, इमाम हुसैन के रुखसार के ऊपर छड़ी मारी जा रही है, दांतों पर छड़ी मार रहा है, लबों पर छड़ी मार रहा है, लेकिन इमाम हुसैन का सर कभी दाएं गिरता है, कभी बाएं गिरता है, फिर सीधा किया जाता है, फिर ये मारना शुरू करता है। अब ये कयामत का जुमला है। यहां तक कि तीसरा काम जो इस नजिस फर्द ने अंजाम दिया, ये बार बार जब शराब का जाम उठाता है फिर पीता है, जब खाली होने पे आता है बचा हुआ शराब कहां फेंकता है, मुझे जुबान साथ नहीं देती कि मैं बयान करूं। और उसके बाद जो कयामत का मरहला है, जब छड़ी मारता है, कभी हुसैन का सर दाएं गिरता है, कभी हुसैन का सर बाएं गिरता है। एक मर्तबा इसने बुलंद आवाज से अपने दरबारियों से कहा, ये किसने हुसैन का सर इस गैर मुरत्तब अंदाज में काटा है, कभी दाएं गिर जाता है, कभी बाएं गिर जाता है। अरे इसे किसी मुरत्तब तरीके से काटो। मेरे अजीजों, कौन है ज़ैनब उम्मुल मसाइब, वो बीबी? क्या सिर्फ आशूरा में हुसैन को 13 ज़रबों से ज़िबा होते हुए देखा? ना आज शाम में यजीद के दरबार में एक मर्तबा हज्जाम को बुलाया गया, बीबी की आंखों के सामने इमाम हुसैन की गर्दन पर फिर से छुरी चलाई जा रही है, फिर से गर्दन को बराबर किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।